کیا آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن جب ہر انسان اپنی زندگی کے سب سے بڑے سچ کا سامنا کرے گا تو اسے اس کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ کس نام کے ساتھ، والد کے یا والدہ کے؟ اور ایک پکار میں آپ کی پہچان، آپ کا نسب اور آپ کی پوری دنیا بدل کر رکھ دینے والا منظر ہوگا۔ وہ لمحہ کیسا ہوگا جب ہزاروں لاکھوں انسانوں کے درمیان آپ کا نام پکارا جائے گا اور آپ کو احساس ہوگا کہ آج صرف اعمال ہی نہیں بلکہ آپ کی اصل شناخت بھی سامنے آ چکی ہے۔ رک جائیے، کیونکہ اس کے پیچھے ایک ایسی حقیقت ہے جسے جان کر آپ اپنی زندگی کا انداز بدل سکتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایک بات بہت عام اور مشہور ہے کہ قیامت کے دن تمام انسانوں کو ان کی ماؤں کے ناموں سے پکارا جائے گا۔ بہت سے لوگ یہ بات پورے یقین کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور آگے بھی پہنچاتے ہیں، لیکن کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ کیا قرآن و حدیث میں اس بات کا واضح ثبوت موجود ہے؟ کیا تمام انسانوں کو ماؤں کے ناموں سے پکارا جائے گا یا والدوں کے نام سے؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں کیا ہوگا؟ آخر اس مشہور عقیدے کی حقیقت کیا ہے اور اس بارے میں اسلام کی اصل تعلیمات ہمیں کیا بتاتی ہیں؟ آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں اس اہم سوال کا جواب جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر انسان ہے کیا؟ انسان کی حقیقت کیا ہے اور اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو صرف فلسفہ نہیں بلکہ ہر دل میں کبھی نہ کبھی ضرور اٹھتا ہے۔ انسان مٹی سے بنایا گیا ایک ایسا وجود ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی، عقل عطا کی، شعور دیا، احساس دیا اور اسے اشرف المخلوقات کا درجہ عطا فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا گیا، یعنی انسان نہ صرف جسمانی طور پر ایک مکمل مخلوق ہے بلکہ اس کے اندر سوچنے، سمجھنے، فیصلہ کرنے اور اچھے برے میں فرق کرنے کی صلاحیت بھی رکھی گئی ہے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد صرف دنیا میں کھانا پینا یا عیش و آرام حاصل کرنا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے حکم کی پیروی ہے۔ انسان کو اس دنیا میں ایک امتحان کے طور پر بھیجا گیا جہاں اس کے ہر عمل کا حساب ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کو عقل دی گئی تاکہ وہ حق کو پہچان سکے اور دل دیا گیا تاکہ وہ حق کو محسوس کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف مراحل سے گزار کر پیدا فرمایا۔ پہلے وہ مٹی تھا، پھر نطفہ، پھر خون کا لوتھڑا، پھر گوشت کا ٹکڑا اور پھر ایک مکمل انسان کی صورت اختیار کر گیا۔ یہ سب مراحل اس بات کی دلیل ہیں کہ انسان کوئی اتفاقی مخلوق نہیں بلکہ ایک حکمت اور منصوبے کے تحت پیدا کیا گیا وجود ہے۔ اب آتے ہیں نام کی اہمیت کی طرف۔ انسان کی پہچان اس کے نام سے ہوتی ہے۔ نام صرف ایک لفظ نہیں بلکہ شناخت، عزت اور شخصیت کی علامت ہوتا ہے۔ اسلام نے نام رکھنے کو بھی اہمیت دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم قیامت کے دن اپنے ناموں اور اپنے والد کے ناموں کے ساتھ پکارے جاؤ گے، لہٰذا اپنے نام اچھے رکھا کرو۔ اس حدیث میں واضح ہوتا ہے کہ نام صرف دنیا کی پہچان نہیں بلکہ آخرت کی بھی پہچان ہے۔ اچھا انسان کے لیے باعث برکت ہوتا ہے اور برے یا بے معنی نام سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اس لیے اسلام میں ایسے نام رکھنے کی ترغیب دی گئی جو نیکی، بندگی اور اچھے معنی رکھتے ہوں۔ اب اگر ہم والد کے مقام کی بات کریں تو والد ایک سایہ دار درخت کی مانند ہوتا ہے جو اپنی اولاد کے لیے دن رات محنت کرتا ہے، تھکن برداشت کرتا ہے اور اپنے بچوں کے لیے رزق کا بندوبست کرتا ہے۔ والد کا مقام اسلام میں بہت بلند ہے۔ قرآن مجید میں بار بار والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا۔ والد نہ صرف ایک کفیل ہوتا ہے بلکہ خاندان کی عزت، حفاظت اور رہنمائی کا ذریعہ بھی ہوتا ہے۔
दूसरी तरफ वालिदा का मुकाम भी किसी सूरत कम नहीं। बास पहलुओं में ज्यादा बुलंद माँ है। माँ वो हस्ती है जो बच्चे को अपने पेट में रखती है, तकलीफ बर्दाश्त करती है, पैदाइश के वक्त दर्द सहती है और फिर बचपन में हर लम्हा अपनी नींद कुर्बान करती है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने वालिदा के हक को खास तौर पर बयान किया गया है। माँ ने तकलीफ पर तकलीफ उठाकर बच्चे को जन्म दिया और 2 साल तक दूध पिलाया, इसलिए माँ का हक बहुत अजीम है और इसके साथ उसने सलूक की बहुत ज्यादा ताकीद की गई है। अब नस्ब क्या होता है? नस्ब से मुराद इंसान की खानदानी पहचान और इसका सिलसिला है, यानी वो किस खानदान से ताल्लुक रखता है, इसके वालिदैन कौन हैं, इसकी नस्ब कहाँ से चलती है। इस्लाम में नस्ब की हिफाजत बहुत अहम है क्योंकि इससे खानदानों की पहचान कायम रहती है और मुआशरती निजाम दुरुस्त रहता है। अब एक खास सवाल आता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नस्ब कैसे होगा, क्योंकि इनके वालिद नहीं थे, सिर्फ वालिदा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम थी। इस्लाम के अकीदे के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगज़ीदा नबी हैं। इनकी पैदाइश मौजिज़ाना तौर पर बगैर वालिद के हुई। इनका नस्ब वालिद की तरफ से नहीं बल्कि वालिदा की तरफ से पहचाना जाता है, यानी वो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान मजीद में वाज़िया ज़िक्र है कि वो ईसा इब्न मरियम हैं, यानी मरियम के बेटे। इससे मालूम होता है कि इनकी निस्बत वालिदा की तरफ की जाती है क्योंकि इनका कोई जिस्मानी वालिद मौजूद नहीं था। ये अल्लाह की कुदरत का अजीम निशान है। इसने बगैर बाप के भी एक कामिल इंसान और नबी को पैदा फरमाया। अब हम वापस आते हैं असल मौजू की तरफ कि क़यामत के दिन इंसान को किस तरह पुकारा जाएगा, वालिद के नाम से या वालिदा के नाम से। इस बारे में हदीस मुबारका में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नकुम तुदऔना यौमा मल क़ियामती बी अस्माइकुम व अस्माई आबाइकुम फाहफिनु अस्माअकुम। सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 4948। तर्जुमा, तुम कयामत के दिन अपने नामों और अपने वालिदों के नामों के साथ पुकारे जाओगे, लिहाजा अपने नाम अच्छे रखा करो। इस हदीस में वाज़िया होता है कि असल पुकार वालिद के नाम के साथ होगी ताकि निस्ब जो है वाज़िया रहे और हर इंसान की मुकम्मल शिनाख्त सामने आ जाए। इस दिन कोई भी शख्स अपने आप को छुपा नहीं सकेगा और ना ही कोई रिश्ता या पहचान मुखफ़ी रहेगी। हर इंसान को इसके नाम और इसके नस्ब के साथ बुलाया जाएगा। अलबत्ता हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मामले में चूंकि इनका वालिद नहीं था, इसलिए इनकी निस्बत वालिदा की तरफ होगी और इन्हें ईसा इब्ने मरियम के नाम से पुकारा जाएगा। यही कुरान भी कहता है और यही इनकी पहचान है। इनसे अल्लाह ताला की कुदरत भी जाहिर होती है और ये भी मालूम होता है कि नस्ब का असल मेयार सच्चाई और हकीकत है, ना कि सिर्फ रवायती असूल। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत अल्लाह ताला की अजीम कुदरत और बेमिसाल शान का एक रोशन मुअजिज़ा है। अल्लाह ताला ने इन्हें बगैर बाप के पैदा फरमाकर पूरी इंसानियत को ये हकीकत दिखा दी कि वो हर चीज पर कामिल कुदरत रखने वाला है। जिस रब ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ और बाप के पैदा फरमाया, वही रब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा करने पर भी कादिर है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला किसी भी सबब का मोहताज नहीं, बल्कि जब वो किसी चीज का इरादा फरमाता है तो सिर्फ कुन यानी हो जा फरमा देता है, वो चीज वजूद में आ जाती है। इस मौजज़े के जरिए अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत, अज़मत और रबूबियत का ऐसा निशान जाहिर फरमाया जो क़यामत तक लोगों के लिए ईमान और इबरत का जरिया बना रहेगा। प्यारे नाज़रीन, खुलासा कलाम ये है कि हमारे माशरे में एक बात बहुत मशहूर है, क़यामत के दिन इंसानों को इनकी माओं के नामों से पुकारा जाएगा और बहुत से लोग इसे बगैर तहकीक के दुरुस्त समझते हैं। बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन बंदों की पर्दापोशी के लिए इन्हें वालिदा के नाम से पुकारेगा। लेकिन जब हम कुरान और सुन्नत और मुहद्दिसीन की तहकीकात का मुतालिया करते हैं तो मालूम होता है कि इस बात के हक में कोई मजबूत और सही हदीस
हदीस मौजूद नहीं। इसके बरअक्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मिलता है कि तुम क़यामत के दिन अपने नामों और अपने वालिदों के नामों से के साथ पुकारे जाओगे, लिहाजा अपने नाम अच्छे रखा करो। इस हदीस से वाज़िया तौर पर वालिद के नाम का जिक्र मिलता है। अलबत्ता हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसे खास हस्ती जिनके वालिद नहीं थे और इनकी निस्बत इनकी वालिदा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ हो गई, और इन्हें लिहाजा ये समझना दुरुस्त नहीं कि तमाम इंसानों को अमूमी तौर पर माओ के नामों से पुकारा जाएगा। अहले इल्म की अक्सरियत के नजदीक सही और राजिया मौकफ यही है कि आम इंसानों को क़यामत के दिन इनके नामों और इनके वालिद के नाम के साथ पुकारा जाएगा, क्योंकि नस्ब की पहचान खानदानी शिनाख्त वालिद के जरिए कायम होती है। इसलिए जरूरी है कि हम मशहूर बातों को भुलाकर बिला तहकीक उन्हें कबूल करने की बजाय कुरान और हदीस और मुअत्तबर उलमा इकराम की तहकीक की रोशनी में समझें, ताकि अकीदा दुरुस्त रहे और गलत फहमियां दूर हो जाएं। क़यामत के दिन का दिन वो दिन होगा जब हर इंसान अपनी असल पहचान के साथ खड़ा होगा। न माल काम आएगा, न रिश्ता, न दुनिया की इज्जत, सिर्फ अमाल काम आएंगे। लेकिन इसके साथ साथ इसकी पहचान भी मुकम्मल तौर पर वाज़िहा होगी कि वो कौन था, किसका बेटा था, इसने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी। यही वो हकीकत है जो इंसान को दुनिया में आजिज़ी सिखाती है। जब इंसान जान लेता है कि एक दिन इसे पूरे अपने नाम और नस्ब के साथ अल्लाह के सामने पेश होना है, तो वो फिर अपने अमाल, अपने किरदार, अपनी जिंदगी के बारे में ज्यादा संजीदगी से सोचता है। आइए हम सब अल्लाह ताला के हजूर आजिज़ी के साथ दुआ करें कि ए अल्लाह, हमें हक को हक समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, और बातिल को बातिल समझने और इससे बचने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, अगर हमने ला इल्मी में किसी गलत बात या गलत रवायत या गलत फहमी पर यकीन किया हो तो हमें माफ फरमा कर हमारी तौबा कबूल फरमा ले। ए रब्बुल आलमीन, हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक सही इल्म अता फरमा, हमारे अकायद की हिफाजत फरमा, हमें गुमराही से बचा। ए अल्लाह, हमें ऐसे खूबसूरत और बामायनी नाम नसीब फरमा जो तुझे पसंद हो, और हमारी औलादों को भी नेक नाम और नेक किरदार अता फरमा। हमारे वालिदैन पर अपनी रहमतों की बारिश फरमा, इनकी मग़फ़िरत फरमा, और क़यामत के दिन हमें नेक लोगों के साथ उठा ले। ए अल्लाह, जब हमारा नाम क़यामत के दिन में पुकारा जाए तो हमें शर्मिंदगी नहीं बल्कि इज्जत, रहमत और कामयाबी नसीब फरमा। अल्लाह ताला हमें अच्छे अच्छे नाम और अच्छे अमाल और अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक की तौफीक अता फरमाए, और हमें क़यामत के दिन सुरखरू फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।